वेलकम एवरीवन टू गल्ला गप्पा, जहाँ हम करते हैं हम सबकी बातों पे चर्चा। तो मैं अभिषेक ए बनी, और चलो शुरू करते हैं बनी की चर्चा। हेलो एवरीवन। तो आज हम अपने गेस्ट का स्वागत करते हैं, मेजर खान का। तो सर प्लीज हमें आपकी इंट्रोडक्शन दीजिए पहले, तो आप प्लीज थोड़ा सा। As you said, I'm Major AQ Khan. I belong from Lucknow. Currently, I'm posted in Pune in the command. And bodybuilding and fitness has always been my passion since my younger days. And till now, I'm able to continue it by God's grace and everybody help and support. एंड आई थिंक सर आपने कुछ अचीवमेंट्स भी किए हैं बॉडी बिल्डिंग में। Recently, in November 23, I secured bronze medal in World Bodybuilding वर्ल्ड Championship in Classic Physique category. एंड आई कांग्रेचुलेशन फॉर दिस Thank you so सर। much. Thank you. एंड आई थिंक आपने मिस्टर पुणे भी रहे हो, मिस्टर इंडिया भी रहे हो। Mr. India, I was Mr. India in the year 2021 after COVID. तो आपका अभी लाइक इतने अचीवमेंट्स के बाद भी आपका आगे का क्या प्लान है? Abhi again I'll be going for the selection trials of World Championship that will be in the month of May, Okay. and World Championship will be scheduled around in the month of October. So this time I'll be aiming for the gold. बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस। Thank सो you. सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन मेरा सर। Yes. आप सर आर्मी में हो Yes, yes. एंड आपका ड्रीम अब अभी आप लाइक बॉडी बिल्डिंग का है, राइट? तो आप ऐसे दोनों को कैसे बैलेंस कर रहे हो? I think being in army itself balances it out because bodybuilding and fitness and army की जो fitness and discipline है ना, it goes hand in hand. हम्म। तो मुझे ऐसा ज़्यादा कभी दिक्कत नहीं हुआ. आई ऑलवेज फाउंड कि जो फौजी रूटीन है एंड जो डिसिप्लिन है, जो फिटनेस का उनका पैरामीटर्स है, इट इज़ ऑलवेज कॉम्प्लीमेंटेड इन माई बॉडी बिल्डिंग. सो इट हैज़ बट ऑलवेज हेल्प मी. बट फौजियों का लाइफ थोड़ा इंड्योरेंस वाला ज्यादा होता है, हाँ, यस यस. तो आपके लिए थोड़ा बहुत चैलेंजिंग फेस हो। तो yes, that was a challenge, but I took it in a way कि for all round fitness you cannot always be a bodybuilder. At times you have to train as an endurance athlete for your overall fitness and well-being, because being a bodybuilder you neglect your cardiorespiratory system and endurance training. So I do bodybuilding, whatever I do bodybuilding, I train in the gym as a bodybuilder, and Forge makes me train as an endurance athlete. So I get both the Both. combination, best of both the things. सो लाइक कॉमन मिथ है कि लाइक ज्यादा कार्डियो करने से मसल लॉस होता है, यू कांट बिल्ड मसल। Yes, इस पे क्या आपका ये है? yes. If you are doing more cardio, then muscle building will be डिफिकल्ट। a bit of तो difficult. आपने चैलेंजेस फेस किए थे इसमें? Yes, yes, yes. And being, it depends on your body type also, whether you are a good gainer or not. So for me, I'm a hard gainer. So for me, throughout the year, I'm always on the gaining mode. And just before the competition, I go into that cutting mode. So that has always been a challenge. Yes, yes. सो आपका सर आर्मी में कैसा लाइक एक्सपीरियंस रहा है? Army में I've always had a good कोई experience. स्टोरी बताएं लाइक हमारे। Stories तो मतलब normal है, nothing like कि नॉट लाइक कंट्रोवर्शियल। no, you say ना, जैसे you must be finding any encounter with terrorists, ऐसा आज तक नहीं हुआ है. I have been posted in places where it was a Peaceful. pretty good Kind. environment and condition. एंड ओके, सो आप अभी सर बॉडी बिल्डिंग का ये जो है Yes, yes. एंड आप आर्मी में हो, तो Yes. आपने इस ड्रीम को अचीव करने के लिए क्या क्या लाइक कैसे किया? इस ड्रीम को अचीव करने के लिए सिर्फ मतलब देयर आर फ्यू थिंग्स दैट आई हैव ऑलवेज केप्ट इन माय माइंड. फर्स्ट इज कि बिलीव इन योरसेल्फ, एंड सेकंड इज बी कंसिस्टेंट. मतलब इट्स अ काइंड ऑफ अ मैसेज टू यंगस्टर्स आल्सो, somebody who is aiming for going to compete in bodybuilding. Just focus on these two things: believe in yourself and be consistent in your routine, in your workout, in your diet. For example, being consistent means, suppose you have to go for a party at your friend's birthday or any event, and at the same time you have your workout routine. So you have to intentionally choose going to gym, not choosing that going to a party. That is how you maintain the consistency. And again, same thing happens while you are choosing your diet, because when you are socializing and meeting with people, there are people with different kinds of taste, having different kind of food, but still being amongst them and choosing what is good for your training, what is good for your body.
that again becomes intentional. So these two things I've always tried to do, and it has really helped me a lot. सो अभी आपका नेक्स्ट पोस्टिंग पुणे में है, अभी करंट अभी पोस्टिंग currently करंट I'm वो है posted in Pune, and I don't know कि where I will be getting posted after this. बट अभी अभी तक आपकी पोस्टिंग कहाँ हुई है? I have been posted to Jammu, I have been posted to Nagaland, I have been posted to Jabalpur. This is Pune now. तो आप तो जम्मू जम्मू का जो ऐसा दिखाते हैं टीवी पे, Yes, सिचुएशन जम्मू में ऐसा ऐसे है? दिखाते हैं, होता है, but luckily or unluckily I didn't face any kind of that kind of situation. But होता है, I've also heard, but मैंने फेस नहीं किया. मेरे जाने के बाद कुछ ऐसे इंस्टेंसेस भी हुए हैं जम्मू में, जो कि इनकाउंटर विद एनी टेररिस्ट, ये सब हुआ है. सर टेल मी थोड़ा मिलिट्री का डिसिप्लिन सर. Military का discipline, it starts from the day you enter the training center. I completed my training in Indian Military Academy. So the day you enter it, it starts. You have to get up at 4:30 in the morning and make up your bed and clean your room, then go for your first training session, that is physical training in the morning, go for a run, then power PT, come back to classes, come back to room, change, take bath, have breakfast, again go for the classes, again you have classes till 1:30 or 2, then again come back, have food, again get ready for the evening trainings. It's completely scheduled. Every minute, every hour, every second is already been scheduled. So you cannot go left and right. And if you go left and right, you get the punishment. So this is how we learned it. आपको कोई पनिशमेंट मिली है? Yeah, मतलब that's a part of the training. Though So I not got much punishment. I don't know why, but आप थोड़े सिंसियर स्टूडेंट थे. might be, हाँ, but I got lucky with sometime getting away with some indiscipline also. Sometimes I was also late, but slowly discipline gets into your habit. Yeah, exactly. This is what training is all about. Because we are coming from all different aspects. Somebody is coming from northern part of the country, somebody is coming from the southern part of the country. Everybody has a different lifestyle and routine. Their parents, their upbringing, everything is different. But coming together on that same platform, you learn that habit of going anywhere in time, wearing your proper dress, and all that discipline comes into your training part. So like if you don't wear a outfit like अपना uniform properly, तो उससे भी आपको punishment मिलती है? Yes, we get punishment. We get ticked off for not wearing properly. So like punishment किस type की होती है फिर? There are different kinds of punishments, yeah, depending upon what is your kind of offense. If it is something you have done intentionally, so you have a bigger punishment. Something you have done unintentionally, you just missed it, still you'll get small punishment for it. But you get. You get. Punishment मिलनी compulsory है. Yeah. Different kinds of punishments are like kind of training only. It is nothing good for you. It is nothing like you are embarrassing somebody or you are humiliating somebody. It is not like that. Punishments will be like kind of a 5-kilometer run, 10-kilometer run with a 25 kg pittu bag. So these are punishment. Punishment is like when you are in the training mode. These are the punishments in academy. Nobody humiliates. Nobody makes anybody embarrassed. So punishments आप as a gym trainer भी हो, right? So अभी पुणे में I think, right? तो हम आप जब जिम में किसी क्लाइंट को या किसी को 10 जंपिंग जैक 10 बर्पी का पनिशमेंट देते हो तो उनको ज्यादा लगता है. Yes. एंड आप 5 किलोमीटर बस ऐसे ही बोल रहे हो, कुछ नहीं है, इट्स नथिंग, राइट? तो उसमें आपको क्या है लोगों को इस पे क्या कुछ मोटिवेशन या कुछ? I'll share my experience. Opinion, हाँ. When I entered the academy, I also thought 5 kilometers, 10 kilometers are such a big thing. कैसे होगा? But when you start doing it, then you feel like, as I can do it. And once you are able to do it and start believing it, next time also you can do it, you start building that confidence. And that really helps. So for everybody, I would recommend, unless you are pushing your limits, you'll not start feeling confident in yourself. जब तक लिमिट पुश नहीं करो, yes. लिमिट till the time you are in comfortable zone, you are not going to learn and grow. तो सर आपने आर्मी में जाना है, लाइक ये कैसे डिसाइड, मतलब कैसे, ये इसका स्टोरी है? कुछ इसका स्टोरी है, it was like I never planned to get into army. Okay.
I never planned. I went for the SSB just to see because सुना था कि 0.1% लोगों का SSB में होता है. ओके तो मैं कहा, ठीक है चल के देखते हैं क्या है 0.1% में क्या होता है, लेट्स सी, है ना. तो आई वेंट एंड क्लियर माई फर्स्ट डे वाला जो भी सिलेक्शन प्रोसीजर में रहते हैं टास्क, क्लियर दैट. फिर क्लियर ऑल द 5 days का जो भी टास्क रहते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर का, cleared them and cleared medical and just got through. मतलब it wasn't कि I have planned. I even never knew कि what is going to happen because in SSB people have been preparing for 5 years, 10 years, 15. मतलब five times, 10 times. There was one candidate in my group who was appearing around 17 times SSB. तो he had a separate notebook कि हाँ भाई क्या करना होता क्या नहीं करना. आई वॉज नॉट अवेयर कि कौन कौन से एग्जाम होने हैं, कौन कौन से टेस्ट होने हैं. उनके पास तो सारा एक्सपीरियंस और नॉलेज. हाँ, तो इट इज लाइक दैट कि आई जस्ट वेंट इन टू सी. तो what really helped me in that was कि when you are in that mode कि you are observing everything, then you are your real self and you react, respond better. That was the thing that makes a difference and getting and clearing that SSB because जो वहाँ पे selection panel है, they don't want somebody who has come up with a मेड अप माइंड एंड अगर मैं ऐसा होगा तो ऐसा रिप्लाई दूंगा, इफ दे आस्क मी दिस क्वेश्चन तो मैं ऐसे बोल के इम्प्रेस कर दूंगा. दे डोंट वांट दैट एंड दोस पैनल में जितने लोग हैं दे आर साइकोलॉजिस्ट एंड वेरी एक्सपीरियंस्ड. यू कैन नॉट फूल देम अराउंड. So for me, I think being myself and being present at that moment helped me clear that SSB. पैनल में क्वेश्चन किस टाइप के पूछे? It is all about your personality. They want to know about you. They want to know about you and they feel कि हाँ, if you have that thing in you, they'll take you, they'll select. They, और कुछ नहीं चाहिए. I'll just recommend if somebody asks me, many people have asked me what to plan, how to go about for SSB. I will always recommend just be honest, just be yourself. And if you want to prepare, don't prepare for the sake of clearing and answering those questions. Prepare in the meantime to be that individual as a person, as a personality, what they want, not just answering those questions. So that I've always recommended people, and it takes time to reach to get those qualities imbibed in you that they want. तो it's not just कि आपने ओवरनाइट 2-3 महीने की कोचिंग कर ली तो मेरे हिसाब से वो सही तरीका. हाँ, that is not the way. बाकी I've told how मतलब मेरे साथ क्या हुआ. So अभी जब आप आर्मी ज्वाइन कर लिया तो आपको फिर कब रियलाइज हुआ कि मुझे अपने ड्रीम पे भी काम करना चाहिए? I was doing it very consistently. I mean, I was doing this weight training very consistently and following my diet. So many years. Many years. Okay. मतलब I first time I आर्मी entered. ज्वाइन करने से पहले से. Yes. I was doing this weight training when I was 17 years old. That was the first time. Even my one examination of board was still to go. There was some gap for the examination. So I started going to the gym during that period. I was 17. उसने आपको हेल्प किया था या आपको फिर लाइक पहले जैसे वेट कैटेगरी का बहुत सारा आई थिंक अभी भी है कि आपको अगर डिफेंस में जाना है? No. ऐसा वेट कैटेगरी का there is nothing like that. ऐसा नहीं है. In SSB में SSB for officers it is more of your mindset they want to know. Mindset and mentality. बाकी they know physically they can train you. They just want कि कोई आपके अंदर कोई any disease, any weakness, abnormality, any syndrome is not already existing. Rest they know कि they can train you. So these are the things. मतलब they just want to check your mindset. कि whether you have that in you or not, you can become an officer or not. फिर फाइनली आपने फिर अपने लाइक बॉडी बिल्डिंग करियर कब स्टार्ट किया? When I was 27 years of age, that was the first time I competed. So you can say कि I trained for almost 10 years before competing. Or first competition? Yes. I was doing workout and being consistent with my diet. So one of my seniors, he encouraged me actually to why not go and compete when you have made your physique and you are doing it. Why not do it competitively? That was the time I started. So body building
एक एक्सपेंसिव स्पोर्ट है, राइट? Yes, yes. सो आपका इस पे क्या ओपिनियन है? इस पे क्या? Okay. Bodybuilding is an expensive sport, yes, but that doesn't mean it should limit you. It should not be like because it is expensive, I should not do it. I've gone to gyms where my first gym where the membership fees was 150 rupees only in Lucknow. And that too I was not able to pay it regularly. तो मैं भी सर अंकल जो थे आई वुड रिक्वेस्ट हिम कि सर 2-3 महीने की बात इकट्ठे कुछ करके कभी कहीं से तो दैट वाज द केस तो उन्होंने ऐसा हाँ ही अलाउड मी ठीक है 2-3 महीने के बाद कर देना बिकॉज ऐसा लोग नहीं करते हैं। आई डोंट नो आई वाज बीइंग लकी यू कैन से बट आपका लाइक हर फिगर लक कुछ ज्यादा साथ आई डोंट नो मतलब मैं कर रहा था जैसे कि बिकॉज आई हैड वर्कड आउट इन दैट जिम फॉर 5 years कंटिन्यूअसली तो कभी फीस ऊपर नीचे हुई तो ही वुड एक्सेप्ट आई थिंक कि 5 साल 3 साल से कर रहा है कोई बंदा कंटिन्यू आ रहा है एंड ही वाज सेइंग कि मैं वहां पे जाके कुछ फालतू की टाइम पास नहीं कर रहा था जाके कर रहा था तो अंकल वाज वेरी काइंड टू मी तो ही समटाइम्स अलाउड कि चलो ठीक है 1-2 महीने फीस नहीं दे तो कोई बात नहीं एंड वी वर किड्स यार उस टाइम कितने 19 18 19 साल के होते वी वर नॉट अर्निंग तो दैट वाज वेरी काइंड ऑफ अंकल अभी अभी ऐसे लोग मिलेंगे तो अब पता नहीं आई डेफिनेटली ट्राई कि अगर कोई ऐसा है तो उसको इनकरेज करना चाहिए अगर 1-2 महीने की फाइनेंशियली कुछ हेल्प हो सकती करनी चाहिए डिपेंड्स कि हाउ सीरियस दैट इंडिविजुअल इज आज आपका अभी क्या लगता था इस जनरेशन को लेके कितने सीरियस है लोग? ये जनरेशन इज अ डिफरेंट जनरेशन ठीक है जिसको जेन जी कहते हैं एक्चुअली इट इज जेन जी तो बिकॉज ऑफ ऑल दिस changes in the society and technological development one thing that Gen Z lacks मतलब I think Gen Z should work upon is patience until unless you develop patience you cannot develop a good body good physique because it takes time and because of that some people start believing कि ये हो नहीं सकता है and some people start believing ये बिना शॉर्टकट के हो नहीं सकता है so there this is where they go wrong सो हाँ आजकल लाइक हर जिम में लाइक ऐसे लाइक इन्फ्लुएंसर को देख के बॉडी बिल्डर को देख के स्टेरॉइड ले Yes, yes, तो yes. आपके इस पे आप क्या? On this is a very sensitive topic. I would just recommend कि by one line कि somebody who is actually competing on a competitive stage, somebody who is doing professionally or competing on stage, he may take because if you are competing, it is your profession and you are earning your bread and butter by it. You have to look top notch with your best physique on the stage because the result will decide whether you'll get more clients, whether you'll get sponsorship. Your bread and butter will depend on it. Your family, how you are feeding your family will depend on it. For those people, I would recommend कि ठीक है, just चलो ले लो, good. But somebody who's just taking these things for the sake of looking good and impressing girls and kind of showing it off, that is foolish. That is really foolish, according to me. And for a professional also, if somebody is competing also, that too he must be under a proper guidance, proper coach. He must be aware of his dosages, and regular health checkups, blood works that should be done regularly. If somebody who is doing professionally, he is doing following these things, then it's fine. But it is not कि because youngsters have started believing this myth कि हम बिना स्टेरॉइड से बॉडी बना नहीं सकते हैं राइट तो ये मिथ बहुत बहुत ज्यादा डेंजरस है इट्स डेंजरस बीइंग रॉन्ग इट इज डेंजरस हाफ नॉलेज इज बेटर देन जीरो नॉलेज यस मतलब वो हाफ नॉलेज के चक्कर में एंड इट इज अगेन स्टार्टेड फ्रॉम वेयर पेशेंस इफ यू आर हैविंग पेशेंस ना यू सी रिजल्ट्स it cannot happen if you are working hard and if your workout is good with intensity and you are consistent and you are eating clean हो ही नहीं सकता कि बॉडी ना बने हो ही नहीं सकता जेनेटिक्स ऑफ कोर्स जो अगेन जेनेटिक्स वाला पॉइंट क्या है अगेन जैसे पीपल हैव दिस मिथ कि बिना स्टेरॉइड्स की बॉडी नहीं मिल सकती वैसे ही
they have this belief of genetics वाला कि genetics नहीं मेरे. Genetics comes into play when you have given your best, you have given your all, you have trained for 5 years and you have been consistent with all your meals on point, on consistent with your workout every day, slogging, no cheat meals, no partying, no smoking, no alcohol. And after that, if you are competing with somebody and you place second, then you can blame genes. Then you can blame. But if you're not starting be तो जीन्स खराब है मैं नहीं कर पाऊंगा वर्क मेरी बॉडी नहीं मरेगी. मतलब That's again a very foolish thing. जीन्स को मौका तो दो अपने. Yes. And there is a science, epigenetics, which confirms your genes also change by developing, by the environment you put yourself in. training as well. Yes, training and having good diet and everything. So there's a science behind that also. So genes is not a factor, should not be the factor of not giving your best and not training. But in general भी like Indians का genetics is good. Warriors हमारा like Yes. history warriors से रहा है right. तो हमारा genetics Yes. of course definitely strong Yes. है. Yes. It depends So, on which lineage you are. अभी like Maharashtrian महाराणा प्रताप right. You have been always been अभी like warrior. I belong from Rajasthan. तो Okay. महाराणा प्रताप का Yes, वैसा उस टाइप का हमारा वो है हिस्ट्री है. Yes, तो yes. वो लोग 7-7 फुट के थे. Yes. उनका तो वो लोग 2 तो क्या they were depending upon carry. steroid or supplement? No. वो लोग 200 Yes. के मतलब इतना हैवी आर्मर कैरी करते थे जस्ट लाइक नथिंग. Yes. तो उन लोगों का अभी हम लोग तो अभी but nobody reads about them ना, शिवाजी, and nobody reads about those people. What people are seeing is जो Instagram पे influencers हैं, जो अभी just एक आध थोड़ी सी बॉडी बन गई है, और they are there to guide and misguide people. तो आप इसमें क्या बोलोगे? लाइक हर मूड है कोई भी इन्फ्लुएंसर बन जाता है, लाइक बहुत सारे सेलिब्रिटीज है, नाम नहीं ले सकते. Yes. यू नो आई थिंक यू. Yes. बहुत सारे हैं. एंड इसमें व्हाट आई फील इज कि द इशू इज दैट कि जो हमारी फिटनेस इंडस्ट्री है, उसमें द काइंड ऑफ पीपल वी हैव, दे आर, आई कैन से, मतलब आई शुड नॉट से, बट दिस इज द हार्श रियलिटी, दे आर नॉट इनटू एजुकेशन. अगर उन्होंने एक कोर्स भी कर लिया सर्टिफिकेशन का, तो दे विल फाइंड कि भाई हमारा हो गया, नाउ वी आर फुल फ्लेज ट्रेनर्स. और अगर वो कोर्स उन्होंने 6 साल पहले भी किया है, तो दे अगेन दे विल मेंशन दैट कोर्स ओनली. तो दे आर नॉट अपग्रेडिंग इट. तो एक तो ये फ्लॉ है. सेकेंडली जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, उसमें इफ यू फाइंड कि फिटनेस के ऊपर कोई डिग्री या डिप्लोमा इतना इजीली अवेलेबल नहीं है यूनिवर्सिटीज में, जितना बीटेक और एमबीबीएस और लॉ है. तो बिकॉज ऑफ ऑल दीज गैप्स इन द सोसाइटी ना, एजुकेशन सिस्टम बीइंग इनटू फिटनेस इंडस्ट्री, वो एजुकेशन वाला थोड़ा लैग करता है. हमारा इंडिया का इंडस्ट्री, फिटनेस इंडस्ट्री एंड बाकी फॉरेन कंट्रीज के कंपैरिजन में कितना डिफरेंस है? हाँ, यही डिफरेंस है मेनली. क्या है बाहर का, क्या है कि यहाँ पे क्या है इंडिया में, somebody who has been working out for 2 to 3.5 years and body बन गई है, तो जिम ओनर will call him, यार can you be the trainer here without any certification. Of lately from past few years, so I am seeing कि there are few gyms जैसे पुणे and मुंबई, बैंगलोर cities में, तो फिर भी they are good gyms like asking for certifications for anybody to be employed as a trainer. But बाहर you cannot, because it is like you are risking somebody's life. अगर आप किसी के कोई इशू है, कोई सिंड्रोम है, कोई पहले से हेल्थ इश्यूज है, एंड यू आर पुशिंग दैट इंडिविजुअल टू दैट लेवल, एंड वहां पे वो कोलैप्स कर जाता है या कुछ अनसर्टेनिटी हो जाती है, तो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? बट इंडिया में ये सब सिनेरियोज अभी नहीं है. तो अभी इंडिया बहुत पीछे फिटनेस. हाँ, अभी पीछे, बट इट इज ग्रोइंग. बट इसका रीजन क्या है कि लाइक इंडिया इतना अभी भी लाइक अवेयर नहीं है फिटनेस को लेके? सेम एजुकेशन सिस्टम एंड पीपल, लोगों का इंटरेस्ट इन सर्टिफिकेशंस. एंड व्हेन, चलो फॉर एग्जांपल, आई गो टू अ जिम एंड इफ जिम ट्रेनर आस्क मी कि तुम जिम ट्रेनर बन जाओ, जिम ओनर आस्क मी बाय सीइंग माय फिजिक, तो भाई मैं क्यों खर्चा करूंगा पैसा, 30-40 रुपये सर्टिफिकेशन में क्यों लगाऊंगा, जब मुझे 20,000-25,000 रुपये में कमाने लग जाऊंगा. तो वाई विल आई इन्वेस्ट सम अमाउंट ऑफ मनी? हैड इट बीन द केस कि इफ आई अप्रोच अ जिम ओनर इन और अ जिम
and I put up my CV, and he asked कि भाई कितने certifications हैं, then the scenario will change ना. So it's a complete system that needs to be upgraded actually, and it will take some time, and it is happening now. People are getting more educated, more enlightened by social media also. Social media has both the edges ना. It's like a two double-edged sword. मतलब it has advantages also, and there are some influencers जो थोड़ा सा कुछ भी बोल रहे हैं. Yes, yes, yes. तो फिटनेस पे लाइक इन जनरल अगर हम फिटनेस पे अगर यूट्यूब पे भी सर्च करते हैं, Yes, तो एक बात के 10 अलग अलग yes, चीजें निकलती है. yes, yes. तो आपका इस पे क्या चीज है कि लाइक हम कहाँ से कैसे पता लगेगा कि कौन जेन्युइन है कौन. On a broader aspect, again, I'll say कि वो भी एक ही है ना कि वो प्लेटफॉर्म अभी लाइक जैसे हम लोग भी जो पॉडकास्ट कर रहे हैं वो Yes, एक yes. प्लेटफॉर्म पे जाएगा, yes, yes, राइट. तो उसी प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे लोग हैं जो एक ही चीज को 10 अलग अलग, कोई किसी को गलत बता रहा है, वो उसको गलत बता रहा है. yes, yes, yes. So So again, to classify, to find out who is right or who is wrong, again, if I am to go by that, I have to judge. So again, I'll go by education. कि किसने कितनी पढ़ाई कर रखी है, and secondly, how much experience he has in that field. Has whatever he is telling to the client, has he done on himself or not? Because client को तो बोलेगा भाई तुम 250 स्क्वाट लगा लो. क्या उसने खुद कभी 250 स्क्वाट लगाया है और देखा कि बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है? उसको डाइट दे दी भाई तुम ये खा लो, पूरी डाइट बना के दे दी, बॉयल कर खाना, तो क्या उसने कभी खाया है डाइट ऐसे? पता चलेगा कि हाँ क्लाइंट खा पाएगा नहीं खा पाएगा, क्या रिस्पॉन्स होता है. तो दीज 2-3 पैरामीटर्स, आई थिंक एजुकेशन, एक्सपीरियंस एंड जो रिजल्ट्स है क्लाइंट का, दीज 2-3 थिंग्स गिव यू फेयर आइडिया कि भाई उसकी बात सुननी है कि नहीं सुननी है. नहीं तो इंस्टाग्राम पे तो हर कोई अनलिमिटेड इंफॉर्मेशन है. You have to actually filter it out. And इस करंट सिनेरियो में प्रॉब्लम यही है. तो अभी आप किसी को सजेस्ट करना चाहोगे कि अगर लोगों को जानना है? Again, I'll go study. I am not a trainer professionally, but I have done 7 certification just to know and learn things. And currently, I am doing masters in sports science also. Okay. So just keep upgrading yourself. If you are upgrading yourself and learning every day, you don't need any trainer. And second, the point you asked ना कि how to decide करना कैसे है, कि first is to you can decide a trainer by कि भाई कितना पढ़ा लिखा है, कितना उसने courses कर रखे हैं, how educated he is. And secondly, I think कि every individual is different. What suits you and what has given results to you in your training and diet may be or may not be suits me. So you just have to see कि भाई हो सकता है कि 100% सेम कॉपी पेस्ट करके मेरे पर रिजल्ट आ जाए, but it's very bleak chance, बहुत कम chances है. Because everybody is different. Your lifestyle has different, your upbringing has different. For example, you have played soccer since your childhood and you have been a player at national level, so your body structure and your muscles development would be different. And somebody who has always had a sedentary life, तो उसका सब कुछ organs, respiratory system, circulatory system, muscle development, joint, everything will be different. So you cannot put that training program and that diet on this person. It will not give that result. So one has to understand this. Generally, after time management, आप कैसे करते हो? Like, of course, you have shift, right? Yes, yes. And you have fitness का ये भी trim भी achieve करना है आपको. Like you preparing for bodybuilding. Yes, yes. World championship, right? Yes, yes. So how you manage? Bodybuilding is a long-term game. You cannot be a bodybuilder in months or years. It requires at least 4-5 years to become a bodybuilder that is able to compete at national, international platform. As far as I am concerned, I don't have a Netflix Okay. ID. ठीक है? What you call Netflix? Netflix So, ID बोलते हैं? हाँ Netflix है ना? है, Instagram. I don't have Netflix. Okay. So that saves a lot of time because I have phone ki youngsters are. You don't watch any movies? No. They are binge watching at night and not sleeping. So I don't have Netflix. So that saves my time. अपना podcast तो देखो कैसे रहा? Maybe I perfectly watch it. But I'm telling ways and means that one can have to save time. Secondly,
get up early, and to get up early in the morning, you need to sleep early. So this is like how you manage your time. If you're able to get up early, you get extra 2-3 hours, Yeah. from rest of the world. So this is how you start building something in those 2-3 hours. आपका रूटीन कैसे स्टार्ट होता है? मेरा routine, while I was in Firozpur, I used to complete my office task at around 2:30 and AM 2:30 p.m. in the afternoon. Yes, since morning से लेके 2:30 तक करके by 3:30 I was in the gym. मतलब 5:30 we used to go for the morning parades and PT, then come back and फिर office from 8 to 2:30. Then I would come back and have my meal, and that meal would be like a pre-workout meal because I know I have to work out after 40-45 minutes. So 3:30 I was in the gym, 5:30 till I was there. Again 6 o'clock I was back in the office till 9:30 10 whatever the work allows. सो आर्मी में जो परेड जो होती है वो एवरीडे होती है? आर्मी की परेड? Yes, every day, except from Sunday. तो इसका लाइक एवरीडे होने का रीजन? It's like parade, मतलब what I am saying parade and what you are saying हाँ. parade might be different in understanding. हम्म. You are saying parade like march past? नहीं, जो हाँ. लाइक एवरी मॉर्निंग आई थिंक आपका एक रूटीन होता हाँ, तो every day morning है because वो the system has been designed to work in that way. मॉर्निंग में होगा काम, फिर दोपहर में काम होगा, फिर गेम का टाइम ही होगा इवनिंग में. So that has been designed. तो सर आप सर टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हो? लाइक आपका बॉडी बिल्डिंग एंड आपका जॉब Office. है ऑफिस, राइट? तो कैसे मैनेज करते हो दोनों चीजें? तो अगेन की वही सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट की गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग so that you get some extra hours Extra time. for जो भी दिन भर के टास्क हैं. Then during afternoon I finish off my office work, and then in the evening I dedicate myself for workout and training. सो आपके लिए लाइक बॉडी बिल्डिंग और आपका जो जॉब है उसको मैनेज करना इजी है? मैनेज करना इजी है, बट देयर आर few things one need to keep in mind. कुछ sacrifices हैं. If you are going for workout in the evening, so you won't be able to go to parties and with friends outside घूमना घामना पर्सनल टाइम स्पेंड करने को वो नहीं मिलेगा. restriction हो जाती है. मूवीज वूवीज देखने का नहीं मिलेगा, बिंज वॉचिंग करने को नहीं मिलेगा. तो आई डोंट डू ऑल दीज थिंग्स, बिंज वॉचिंग और ये. तो इस तरीके से यू गेट टाइम. So you don't बिकॉज watch टाइम तो क्या है फॉर एनीबडी हु इज ऑन द रोड, अ बेगर एंड समबडी हु इज अ सीईओ ऑफ अ कंपनी, सबके पास 24 आवर्स ही है. इट इज हाउ यू आर एबल टू प्ले विद 24 आवर्स एंड 24 आवर्स में आप कितना अपना टाइम ऐसे डेडिकेट करते हो कि व्हाट यू वांट टू डू you do that, you allocate time for it. उसमें भी वो दो चीज आती है, एक तो what you really want to do and what you want to do हाँ, for fun. Like, yes, हाँ. तो उस वे में आप बोल. तो उसमें भी ना, if you are spending your time on entertainment, तो you will just waste your time. It is not going to help you somewhere, है ना? But just for fun कि हाँ भाई थोड़ा relax कर लिया, ये कर लिया. For me it has always been very easy because for me working out was never like strenuous. I always kind of felt relaxed. It was always very meditative for me, kind of meditation for me, because you are not focusing anywhere. You are present at that moment in the gym, in your session, in your workout. तो because of that, जब मैं जिम से बाहर निकलता था, तो निकलता हूँ आज भी, तो आई डोंट फील कि मुझे किसी मूवी देखने की ज़रूरत है टू कीप माई सेल्फ रिलैक्स, या मुझे दोस्तों के साथ घूमने जाने की ज़रूरत है टू फील हैप्पी. तो बिकॉज ऑफ ऑल दिस मैं इन सब डिस्ट्रैक्शन और इन सब चीज़ों से मतलब बचा रहा. तो टाइम मैनेजमेंट का जो क्या बोलते हैं मूल मंत्र यही सब है. एंड अपार्ट फ्रॉम देयर फ्यू टेक्निक्स लाइक कि प्लान योर डे, वॉट एवर यू हैव इन योर डे, शेड्यूल इट. फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ वाइट बोर्ड एट माई होम, मेरे रूम पे. तो आई यूजुअली राइट डाउन अ नाइट बिफोर और इन द मॉर्निंग कि क्या करना है. और इफ देयर सम मेजर टास्क इन द वीक शेड्यूल्ड, तो आई जस्ट राइट इट डाउन कि भाई इस वीक में ये टास्क खत्म कर देना है. तो देयर 5-6 थिंग्स लिस्टेड. तो दीज आर फ्यू वेज एंड मेथड्स दैट आई हैव मेड. सेकेंडली, डोंट हैव नेटफ्लिक्स अकाउंट, ठीक है. यू डोंट बिंज वॉच, तो वो सब टाइम बच जाता है.
डोंट अननेसेसरी स्क्रॉल ऑन Social योर media. इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, वो टाइम बच जाता है। कहीं बाहर जाके खाना पीना नहीं है दोस्तों से, वो टाइम बच जाता चीट है। नहीं हो रहा डाइट। हाँ, तो दिस इज हाउ यू सेव अपॉन टाइम। टाइम तो 24 आवर्स सबके लिए है, बट यू हैव टू वो आपको समझना है कि कहाँ, नीड यस और यस वांट वाला में यस यस यस, अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि कहाँ से क्या टाइम को क्या निकालना है। करना है और क्या चाहिए। यस यस यस, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो आपने से लास्ट मूवी कब देखी थी मैं लास्ट मूवी देखी और कौन थी, सी? हाँ मैं बता रहा हूँ, मैं लास्ट मूवी गया था अभी छुट्टी पे, तो मेरे जो नीस नेफ्यूज दे ऑल वर एट माय होम, जो उनको दिखाने के लिए गया था। वो कौन सी आई थी, डंकी। अच्छा। तो वो बच्चों वाली मूवी थी, तो उनके साथ ही गया था। तो आपको वैसे कैसी लगी मूवी? वैसे मैं मूवी देख, मतलब मूवी बहुत रेयरली, तो सम हाँ सम आप किस टाइप की मूवी? इंस्पिरेशनल मूवी भी देखनी होगी तो काइंड ऑफ की सम डॉक्यूमेंट्रीज? डॉक्यूमेंट्रीज, आई वॉच डॉक्यूमेंट्रीज एंड कुछ इंस्पिरेशनल, कुछ मोटिवेशनल। तो आपकी अभी तक की सबसे फेवरेट डॉक्यूमेंट्री कौन सी है? डॉक्यूमेंट्रीज तो अलग अलग फील्ड, अलग सब्जेक्ट्स की रहती हैं। ओके, तो ऐसे अपने हॉरर डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह भी देखे होंगे फिर नहीं, हॉरर तो। You don't watch? आई हैवंट वॉच हॉरर डॉक्यूमेंट्रीज। Okay. So you believe in religion and all? यस यस, आई एम वेरी रिलीजियस। So you know कि like इंडिया में सबसे बड़े दो रिलीजन है हाँ और इनके बीच में सबसे बड़ी जो चीजें है हाँ, वो सही है गलत है आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है? देखो रिलीजन तो मेरे ख्याल से बहुत सालों से अलग अलग थे, लोग प्रैक्टिस भी कर रहे थे, बहुत पीसफुली भी कर रहे थे। बट अभी देयर इज अ काइंड ऑफ अ डिफरेंस। रिलीजन फॉलो करने में कुछ नहीं है प्रॉब्लम, लोग अपना रिलीजन फॉलो करते हैं, करते आए हैं, अभी भी कर सकते हैं। लेकिन अभी थोड़ा सा इट हैज बीन मेड कि भाई मैं सही हूँ, तुम गलत हो, तुम गलत हो, मैं सही हूँ। बिकॉज ऑफ दैट क्लैशेस हैपन। तो ये चीज क्योंकि होने ऑल रिलीजन्स हैव एन एंडेवर कि यू आर कनेक्टेड टू गॉड, हम्म, you believe in righteous things, you believe in goodness, you care for humanity, you love humanity, चैरिटी, जितनी भी अच्छी चीजें हैं सारे धर्म वही बताते हैं, लेकिन फिर भी हम लड़ते हैं। तो दिस इज नॉट द रिलीजन दैट टीचेस अस टू फाइट, देयर सम अदर पावर्स, अदर इश्यूज इन द सोसाइटी दैट मेक देम टू फाइट। जो अपने सेल्फिश रीजन के लिए यूज करते हैं यस 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 यस, एवरीबॉडी नोज देम। फिर भी लड़ना है उनको। इसे हम साइड में रखते हैं, हम कहीं और ही जा ये रहे थोड़ा हटा देते हैं, हैं। इसको कट कर दे इसके प्लीज। नहीं इसको डाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, थोड़ा सा थोड़ा सा कैंडिड मिलेगा हमें। सेंटी रहेगा। सेंटी। ओके। सो जैसे अभी हमारा जो फिटनेस अभी हम आराम से छोटा सा। तो अभी अभी हम जो फिटनेस का जो अवेयरनेस है इंडिया हम्म, वो अभी भी उतना नहीं है, राइट? लोग यस को इंडिया में फिटनेस को इतनी वैल्यू नहीं है। आई थिंक कोरोना के बाद इम्प्रूव हुई है यस बट अभी भी उतनी नहीं। लाइक वो ऐसा लगता है कि वो कुछ टाइम के लिए लोग अवेयर हुए थे, अब अभी फिर से भूल गए। यस यस। तो इनको ये अवेयरनेस आई है इंडिया में। अब जैसे कि कोरोना का जो एपिसोड, कोरोना फर्स्ट आया, फर्स्ट वेव एंड कोरोना सेकेंड वेव, उसके बाद डेफिनेटली देयर वाज सम Changes. इम्प्रूवमेंट, लोगों के अंदर थोड़ी अवेयरनेस आई। पीपल स्टार्टेड आफ्टर दैट कोविड वाज आउट, मतलब कोविड खत्म हो गया था बाहर एटमॉस्फेयर से। पीपल स्टार्टेड गोइंग फॉर मॉर्निंग वॉक्स, membership of gyms also increased, and फिर having clean diet and taking that steam and for doing this Alunom Vilom Kapal Bharti, all this like people started doing. काढ़ा वाड़ा। Yes, काढ़ा was also there. तो off lately again जब कुछ होता है तो सब करते हैं। वैसा फिर कि जब मोहल्ले में एक को हार्ट अटैक आया तो हाँ जॉगिंग बस हो गया, तो अभी इट इज लाइक वो चला गया तो लोग भूल गए, अभी कुछ आएगा तो फिर होगा। बट लेकिन हाँ, स्टिल आई कैन से कि हाँ थोड़ा सा इंडिया में पहले से अवेयरनेस बढ़ी है एंड स्लोली स्लोली ये बढ़ेगी। बट ये इंडिया में है क्यों नहीं पहले से ही? क्या लगता मैं आपको छोटा सा एग्जांपल जो मुझे लगता है कि फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए किसी कोई स्टूडेंट है फर्स्ट क्लास का, ही हैज टू गो टू सेकंड स्टैंडर्ड, तो वी हैव ऑल द क्राइटेरिया, सारे एग्जाम पास करो, अटेंडेंस होनी चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, किसी सब पैरामीटर्स हैं। बट वी नेवर हैव अ पैरामीटर ऑफ फिजिकल स्टैंडर्ड्स कि वो अगर 5 किलोमीटर या 3 किलोमीटर भागेगा तभी सेकंड स्टैंडर्ड में जाएगा, या वो इतने पुशअप्स कर लेगा तभी थर्ड स्टैंडर्ड में जाएगा। सब्जेक्ट ही नहीं है उस चीज का। सब्जेक्ट Subject सब्जेक्ट नहीं है है। बट
उसको हमने इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी है कि इट इज अ क्वालिफाइंग क्राइटेरिया फॉर एनीबडी गोइंग फॉर द नेक्स्ट स्टैंडर्ड, नेक्स्ट क्लास। तो ये छोटा सा एग्जाम्पल, अगर हम मान लीजिए ये कर दें स्कूल्स में, स्कूल सिस्टम में, कि थर्ड क्लास का बच्चा फोर्थ क्लास में तभी जाएगा जब वो 15 पुशअप, 25 स्क्वाट और 100 मीटर की स्प्रिंट इतने टाइमिंग में भाग ले। मतलब हम बहुत टफ नहीं कर रहे, वी आर नॉट ट्राइंग टू मेक हिम एन एथलीट, बट बिल्कुल बेसिक फिटनेस जो होती है बच्चे की वो रख देते हैं। तो दिस इज हाउ दैट विल कम इनटू करिकुलम, पीपल विल ट्राई टू, पीपल विल गेट सीरियस अबाउट इट, क्योंकि अगर उनका बच्चा नहीं करेगा तो उनके पेरेंट्स डंडा मार के कराएंगे, क्योंकि उसको नेक्स्ट क्लास में जाना है। जैसे अभी मैथ्स एग्जाम पास नहीं, डंडा मार के मैथ्स पढ़ाई जाती है। तो ये सब चेंजेस जब तक नहीं करेंगे एजुकेशन सिस्टम में, तो वो इतना सीरियसनेस नहीं आएगी। हमारे पास होता क्या है, स्पोर्ट्स डे होता है हर स्कूल में, तो दैट इज द ओनली थिंग कि हाँ वो भी सिर्फ इतना नाम स्पोर्ट्स और फिटनेस वहीं खत्म हो नाम जाता का है होता है। बस। सो ऐसा है कि कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन सिस्टम में गलती है, कमी है। हाँ, कुछ गलती नहीं बोलते, कमी बोलते हैं। इम्प्रूवमेंट चाहिए। एजुकेशन सिस्टम जब बना था तो उस टाइम पे इतनी लाइफस्टाइल डिजीजेस नहीं थी, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लोगों की लाइफस्टाइल चेंज हो गई, ईटिंग हैबिट चेंज हो गया, तो वी नीड टू बी मोर केयरफुल एंड ज्यादा टेक केयर करने की जरूरत है हेल्थ को। सो ऐसा लगता है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम बना था तब से वहीं पे अटका हुआ, आगे नहीं बढ़ा है वो। यस यस, तो दैट्स नीड्स टू बी। लाइक अदर कंट्री में स्पोर्ट को बहुत वैल्यू दी जाती है, यस राइट? लाइक अगर कोई स्पोर्ट्स पर्सन है तो उसको बिल्कुल एक्स्ट्रा बिल्कुल ग्रेड दिए जाते हैं बिल्कुल उसके उस स्पोर्ट्स के लिए, अगर वो किसी सब्जेक्ट में वीक है तो। बिल्कुल बिल्कुल। बट इंडिया में नहीं है ना, उसको उल्टा इंडिया में स्पोर्ट्स में इफ यू आर आस्किंग मी फ्रैंकली, तो दो तीन जगह ही थोड़ा सा आदमी कैन अर्न। वन इज क्रिकेट, क्रिकेट, वो इसमें आपको वही बड़ा बहुत पॉलिटिक्स है। हाँ, बट पॉलिटिक्स तो है, पॉलिटिक्स तो यार हर इट इज जगह एवरीवेयर। यू कैन नॉट, इफ देयर आर थ्री पीपल, इफ यू सेंड थ्री पीपल ऑन मून, अभी पॉलिटिक्स स्टार्ट वही हो पॉलिटिक्स स्टार्ट। ठीक है, तो पॉलिटिक्स लाइक ह्यूमन बिहेवियर, वो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो यू कैन नॉट इग्नोर और अवॉइड दैट, बट डिस्पाइट ऑफ दैट यू कैन हैव सम मेजर्स, सम करिकुलम में डालना कुछ चीजें, तो वो अपग्रेड कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। अब फॉर एग्जांपल क्रिकेट में इतना यू आर लाइक कि इतना करोड़ों का बिजनेस है, क्रेज है बहुत। क्रेज है। अभी पीवी सिंधु एंड कुछ टेनिस प्लेयर्स की वजह से थोड़ा सा आया है, लेकिन उससे पहले कहाँ था? लोग, वाई पीपल डोंट वांट देयर किड्स टू बी स्पोर्ट्स पर्सन, बिकॉज दे नो देयर इज नो फ्यूचर। I was always into athletics. I was always into like weight training and gym jana. But my parents never wanted willingly for me to be a bodybuilder. Once I got a good stable job, then I started competing it. Because I know कि उसमें ज़्यादा फ्यूचर नहीं है, इट इज लाइक कि उसमें अर्निंग के स्कोप कम है। तो दिस इज द हाउ सिस्टम इज, दैट नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड, तभी ज़्यादा स्पोर्ट्स पर्सन आएंगे। सो पेरेंट्स नहीं इंकरेज करेंगे भाई, पेरेंट्स को पता है यार वो 5-6 साल करेगा, उसके बाद वो कहीं इंजरी हो गई तो कोई पूछने वाला नहीं है, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जॉब मिल जाए। तो दीज आर थिंग पेरेंट्स भी रिलेक्टेंट हैं, इसलिए वो स्पोर्ट्स फिटनेस इतना इंकरेज नहीं हो पाता है हमारी कंट्री में। सो कहीं ना कहीं हमारा लाइक स्पोर्ट्स पे है ही नहीं इंडिया, धीमे धीमे आ रहा है, धीमे से कि फॉर एग्जांपल अभी ये और कुछ ज्यादा धीमे आ रहा है। नीरज चोपड़ा की वजह से हाँ। थोड़ा सा आया, बिकॉज ही वन द मेडल ओलंपिक्स में। तो यही सब तरीके से धीरे धीरे यू सी चेंजेस। एक चीज चेंज करने की परमिशन मिले कि लाइक कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप जो भी चेंज करोगे वो ओवरऑल कुछ भी हो सकता है, तो वो चीज या वो लॉ क्या होगा जो आप चेंज करना चाहोगे और क्यों? मतलब बड़ा ये साइलेंस लिया सर आपने। मतलब नहीं, क्योंकि व्हाट आई फील ना, जितना भी इस वर्ल्ड में जो भी मिजरी है, जो भी रॉन्ग डूइंग्स हैं, जो भी हेटरेड है, जो भी नेगेटिविटी है, आई फील मेजर कॉज उसका मनी है। तो इफ समथिंग कैन बी डिजाइन इन अ वे कि मनी, पैसा नोट ही गायब कर दिया है इस दुनिया से, उसकी या फिर उसकी वैल्यू तो कम कर दो, पैसा ही गायब कर दिया है, पैसा इतना जो कि देयर इज नथिंग कॉल्ड मनी, so this world will become more peaceful। फिर सर ऐसा ही लगता कि लोगों को फिर दूसरा कोई टॉपिक मिल जाएगा लड़ने के लिए। मे बी, क्योंकि बिल्कुल, अभी तो वही चल रहा है। क्योंकि अगर हम पैसा निकाल लेंगे फिर रिलीजन आ जाएगा, रिलीजन निकाल दो कुछ और आ जाएगा। यस यस तो वो यस। आए दिन कोई ना कोई तो है।
यस यू आर राइट, कुछ ना कुछ तो आएगा। कि लाइक हमें मतलब लड़ने का बहाना चाहिए। हाँ मैं समझ ना कि लाइक अभी जैसे नेगेटिविटी, हाँ नेगेटिविटी जहाँ एग्जिस्ट करेगी वहाँ पॉजिटिविटी, मतलब दोनों बैलेंस है भाई, हाँ। राइट और रॉन्ग का। तो बट वो तो हम हटा ही अब नहीं लेट्स सी, सकते। मुझे तो ऐसा लगता है कि हाँ, पैसे की वजह से, पैसा, हाँ पैसे पैसा की वजह से क्यों कहीं ना हर कहीं जगह है। बहुत, फॉर एग्जाम्पल, पैसे की वजह से लोग चोरी करेंगे, ठीक है, ग्रीड। झूठ बोलेंगे, दे विल टेल लाइज, ठीक है, ब्राइब करेंगे, सारी नेगेटिव चीजें। लेकिन हालांकि पॉजिटिव चीजें भी हैं, अच्छा पैसा चैरिटी भी करेगा आदमी, रतन है ना? टाटा सर। तो बट चैरिटी कैन बी डन इन टर्म्स ऑफ काइंड ऑल्सो, फूड ऑल्सो, एजुकेशन ऑल्सो। वो करते हैं ना लोग। हाँ, तो मेरे हिसाब से वो जो मनी का जो नेगेटिव एस्पेक्ट है ना, हम्म, उसको किसी तरह से हैंडल करना चाहिए कि इट गोज ऑफ, हाँ या क्योंकि उसको। एवरीबॉडी इज रनिंग आफ्टर मनी। एक भाई दूसरे भाई को मार देता है फॉर प्रॉपर्टी एंड मनी, तो आई फील कि वो कुछ ज्यादा, उसका नेगेटिव एलिमेंट बहुत ज्यादा है। अब फॉर एग्जाम्पल इलॉन मस्क वगैरह ये सब बिलियंस में अर्न करते हैं, तो अर्न करते हैं तो व्हाई कांट दे प्रोवाइड फूड फॉर द पुअर पीपल? अगर वो इतना जितना अर्न करते हैं वो पुअर पीपल को दे दें, तो देयर वुड बी नो पॉवर्टी इन द वर्ल्ड, बट स्टिल देयर एग्जिस्ट पॉवर्टी बट एंड इंटेंशनली इट हैज बीन केप्ट। हाँ, अभी जैसे रतन टाटा सर जो है, उन्होंने बहुत पैसा डोनेट किया, बहुत। हाँ लाइक बिल्कुल उन्होंने आई थिंक ऐसा बोल सकते हैं कि उन्होंने अपनी ऑलमोस्ट पूरी वेल्थ डोनेट कर दी है, यस राइट? यस यस। तो फिर भी देयर आर पीपल, लाइक वो है, बिल गेट्स भी करते हैं आई थिंक, यस यस, बट स्टिल वो चीजें तो वही ना, दिख रही है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव दे बोथ एग्जिस्ट बैलेंस। टुगेदर। यस। अगर मतलब एक बिलियनर डोनेट कर रहा है तो कहीं ना कहीं दूसरा अपना अपना वेल्थ और बढ़ा रहा है। यस। तो ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू सो बहुत ही मच। ट्रिकी क्वेश्चन है, एंड वाज लाइक मतलब यू हैव टू यूज योर ब्रेन्स इन दैट क्वेश्चन। तो दिस हाँ ये है इस क्वेश्चन के लिए। तो दैट्स इट, डन। आज का चलो, पॉडकास्ट ये खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर थैंक यू, कमिंग। नाइस नाइस, वाज नाइस कमिंग हियर, माय एंड प्लेजर। आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे सब्सक्राइबर्स को? Please, first of all, I'm thankful to him for calling me on this podcast. Though it's just his beginning, I wish him all the luck, थैंक यू सो and मच सर। hopefully this channel will grow by inviting right people here and educating people. And we look up to your channel in future, and I wish you and hope you do good. थैंक यू सो मच Once सर। again, all the best. थैंक यू सो मच। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज कमेंट आपको ये वीडियो कैसा लगा, एंड बताओ आपको जो आज जो टॉपिक पे बातें हुई है आपको कैसी लगी, सही गलत, आपका जो ओपिनियन है प्लीज बताओ। एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।